Students, I hope you all are fine. And now let's start with chapter number 3rd, that is elementary concepts of objects in classes, which is the last chapter of our first term computer syllabus. In this chapter, we are going to learn the first topic is what is an object. Object is nothing but an identifiable entity. Identifiable means anything in the world which can be identified that has some characteristics, state and behavior. जिसका कुछ अपना डेटा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है वो ऑब्जेक्ट, वो क्या कैसा बिहेव करता है. We have given you examples in last chapter also. Suppose digital camera is an object. So digital camera has some characteristics, just as the digital camera is having lens, image sensor is there, LCD screen is there, उसका कुछ particular size है, it has some color. So these are some characteristics. And what it can do, it can take pictures, it can record videos, it can record audios also. So those are its behaviors. So in this way we can take any example of the real world which is an object. Object can be living thing also and non-living thing also. We have already discussed in last chapter also. So a digital camera is having state, either it is on or it is off. So state, characteristics, we can use these things as variables in the Java program. And behavior of the method, that is represented in the form of methods in the Java program. That will be dealing later. Methods will be dealing later, and member variables is covered in this chapter. So it is giving you examples. Digital camera, bicycle is there. Next topic is what is a class. Now the question can come, simple definition of class. Simple definition is a class is a blueprint of objects that share common properties, relationships and the behavior of the objects. हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम क्लास एक डिज़ाइन करते हैं, क्लास स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है एक तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए. मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट कम एंड इन वन क्लास. सपोज you are having your class is 9th. Let's take an example, 9th yellow. So 9th yellow में एक ही एज ग्रुप के बच्चे हैं, एक ही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं. सो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ वन क्लास आर कैरिंग मोर और लेस सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स. सो इन दिस वे वी कैन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस, दैट क्लासेस एक ही सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की तरह हम ग्रुप कर सकते हैं. अगर व्हीकल्स की क्लास बनानी है तो उसमें व्हीकल्स ही आएंगे, कोई और कार्टून करेक्टर्स नहीं आएंगे या बुक्स नहीं आ सकती हैं. अगर बुक्स की क्लास बनानी है तो उसमें बुक्स का डेटा आएगा, बुक्स के बारे में बात की जाएगी, ना कि व्हीकल्स के बारे में. सो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लिया जाता है जो कि हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टीज़, रिलेशनशिप्स और बिहेवियर को शेयर करते हैं. On the next page, same way example is giving that if a class is book. So book can be of type English, Hindi, Science, Computer और many other subjects are having. लेकिन book एक कंसिडर हो सकती है एक क्लास के अंदर. किसी भी सब्जेक्ट की बुक एक क्लास के अंदर ग्रुप की जा सकती है बिकॉज सबके सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, सबके सेम करेक्टरिस्टिक्स हैं. हर एक बुक के कुछ पेजेस होंगे, कुछ उसमें डेटा होगा, किसने लिखी होगी, किस सब्जेक्ट की होगी. तो हम इन टाइटल्स को एक क्लास के अंदर ग्रुप कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एवरी क्लास कंसिस्ट ऑफ data members and member function. I just told you that variables and methods of the object is in the class. एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल मीन्स ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर, दैट इज़ मेथड. ये दो चीज़ें एक क्लास के अंदर बंद कर दी जाती हैं. इन दिस वे इट इज़ शोइंग यू इनकैप्सुलेशन प्रोसेस. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू द फर्स्ट चैप्टर इज़ द बेसिक थिंग, क्योंकि उनसे आपको उनकी टर्म्स समझ आएंगी. टर्म्स की डेफिनेशंस वॉज कवर्ड इन फर्स्ट चैप्टर्स. नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास अब पिक्टोरिकली प्लस प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमें सिखाएगा कि इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है. So encapsulation was to encapsulate or to wrap data and methods in single unit that is known as class.
So this was encapsulation, and a class consists of data, that means variables, and behavior, that means methods of the object. Again the same example which was already covered in the last chapter, again it is giving that class name is fruit and objects are orange and mango. Any fruit can be the object, right, and that can be grouped as in a class. अब हर एक फ्रूट का कुछ कलर होगा, कुछ फ्लेवर होगा, कुछ ओरिजिन होगा. दैट पर्टिकुलर थिंग्स आर नोन एज ब्लूप्रिंट. एक बेसिक डिज़ाइन रेडी कर लिया जाता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरीज क्या आएंगी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स की हेडिंग्स क्या आएंगी, उनको पहले से सोच लिया जाता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को उसमें पुट कर दिया जाता है, क्योंकि हर एक फ्रूट की कोई ना कोई कलर होगा, कुछ ना कुछ फ्लेवर होगा और कुछ ना कुछ उसका ओरिजिन होगा, कहाँ से आया है, किस प्लेस से ओरिजिनेटेड है. सो दीज थिंग्स कैन बी कवर्ड इन वन क्लास डिज़ाइन. क्लास डिज़ाइन एक ब्लूप्रिंट है जो एक तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए रेडी कर लिया जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आए उनकी वैल्यूज़ उसमें इनिशियलाइज कर दी जाएं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक्स आर क्लास एज ऑब्जेक्ट फैक्ट्री and class as user defined data type. These two can come as questions, right. Why class is known as object factory? Now what is the reason behind? Why? Because we can create n number of objects from one class. अब यही एग्जाम्पल है, हम जितने मर्जी फ्रूट्स आ जाएं हम इस क्लास के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. वंस द क्लास इज रेडी देयर इज़ नो लिमिट कि ऑब्जेक्ट्स कितने आएंगे, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स आएँ. कोई नया ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई नया फ्रूट डिज़ाइन हो रहा है वर्ल्ड में, देन ऑल्सो इट कैन बी कंसिडर्ड इन दिस क्लास. कोई भी चीज़ ऐड करनी है, कोई न्यू इंसर्ट होनी है, किसी भी तरह की चीज़, अगर एक बार क्लास का डिज़ाइन रेडी है जितने मर्जी फ्रूट्स उसमें आ जाएं और उनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं. सेम इज़ द केस ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस. अगर हमारे स्कूल, लेट्स सपोज कोई न्यू स्कूल स्टार्ट हुआ है, उसमें अभी तक 10 बच्चे इनरोल हुए हैं. स्लोली एंड स्लोली मोर स्टूडेंट्स विल कम. धीरे धीरे जितने मर्जी स्टूडेंट्स आ जाएं वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस में ऐड होते जाएंगे, क्योंकि एक बार डेटाबेस एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है कि हमें बच्चे का नेम चाहिए, स्टूडेंट एडमिशन नंबर क्रिएट करना है, रोल नंबर्स, क्लास एंड सेक्शन. सपोज़ ये टाइटल्स हमने अगर पहले से डिज़ाइन कर लिए हैं, जितने मर्जी स्टूडेंट्स उस स्कूल में आ जाएं, slowly and slowly we can add in that Java programming. Okay, that is why it is known as class as object factory. एक ऑब्जेक्ट फैक्ट्री है, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स इसमें हम ऐड कर सकते हैं एक क्लास के अंदर. नाउ व्हाई क्लास इज नोन एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप? क्योंकि यूज़र अपनी खुद की टाइप्स को डिफाइन करता है, इसलिए क्लास एक ब्लूप्रिंट बन जाती है वो स्पेसिफिक डेटा टाइप्स के लिए जो यूज़र ने types use किए हैं. I'll give you one example of Java program for this. Now let's see. For this I have taken one example. The ABC is the class name in which I have taken 4 variables. 4 titles लिए हैं जिनके अंदर डेटा आएगा. Variables मतलब जो हमने अपनी नेम्ड लोकेशन रखी है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे. Suppose A I have taken for roll number, name I have taken for student name, admission number I have taken for taking the admission number of the student, and parent name variable for taking the parent name. So मेरी ये जो क्लास है ABC ये रिप्रेजेंट कर रही है इन 4 टाइप्स को, कि इन 4 टाइप्स का ही मैक्सिमम डेटा मेरी क्लास में आ सकता है, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मेरी क्लास में ये 4 वेरिएबल्स के अंदर ही डेटा आएगा. सो मेरी क्लास एक्ट कर रही है यूज़र डिफाइंड. यूज़र, हु इज़ यूज़र हेयर? मी, the programmer, which is who is defining the data types. These are the data type which I am defining. So my class is acting as user defined data type. That means मेरी जो ABC class है वो int, string, int, string इन टाइप्स के डेटा को ऐड कर सकती है whenever it is required. जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा मेरी क्लास एक्ट करेगी मेरी डेटा टाइप्स के लिए. तो ये कंबाइन करके हम मेरे को सारा डेटा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्लास. दैट इज़ वाई अ क्लास इज नोन एज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप.